भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का सदैव आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्यतनसुविचारः। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। हमें सदैव मन से, कर्म से और वाणी से सज्जन, गुरुजन और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। Good morning. Today's news is presented by T. Shija and Anisha. National news. Nitin Gadkari urges automakers to introduce flex fuel engines. New Delhi. Promising all support to the automobile industry, Union Minister Nitin Gadkari on Friday encouraged automakers to introduce flex fuel engines in India on a large scale to promote alternative fuel in alignment with the government's Atmanirbhar Bharat drive. Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman to hold review meet with heads of banks and NFDCs over COVID-19 related stress. Defense Minister Sri Rajnath Singh met his Chinese counterpart Wei Fenghe yesterday in Moscow on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization summit. Now some international news. China urges India to stop banning Chinese mobile apps under national security concern. Spoke China urges India to roll back ban on 118 apps, says it's violation of WTO rules. Preliminary results from 2 early phase non-randomized trials of the Russian vaccine candidate Sputnik V showed no major side effects over 42 days and induced antibody response within 21 days, says the Lancet. Now, over to Anisha. Sports news. Messi staying at Barcelona. The Argentinian announced that he would be staying at the club, having previously said he was unilaterally ending his contract. Messi says he cannot take Barca to court. Having been picked up in the IPL auction by the Delhi Capitals, Tushar Deshpande and Lalit Yadav aim to make it big in IPL 13. Today, 5th September, the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan is being celebrated as Teachers' Day. President Ramnath Kovind extends warm greeting to teacher community. An ideal teacher consistently encourages the students to pursue the objective and realize their goals. No doubt, teachers are the guiding force for the students and true builders of our nation. This is the precise reason why the Guru Shishya tradition holds special reverence in Indian culture, says President Kovind. Our Vidyalaya is also celebrating Teachers' Day today. Thank you. Have a nice day. Have a nice day. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Deva
महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक दिवस के आज पावन अवसर पर मैं विश्व विद्यालय देश के समस्त गुरुजनों को हार्दिक नमन करती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अतिथि महोदय, विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज इस प्रातःकालीन सभा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षा जीवन की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। शिक्षा न केवल मनुष्य को किताबी ज्ञान देती है, अपितु व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनाती है, उसे समाज में जीने लायक बनाती है। इसीलिए कहा जाता है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, अपितु शिक्षा ही जीवन है। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा देश महान। और किसी भी शिक्षा के लिए, एक बेहतर राष्ट्र के लिए एक बेहतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी होना आवश्यक है। हमारे जो महान विद्वत जन हैं, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना की है, उसका निर्माण किया है। तो अभी उसका कार्यान्वयन होना बाकी है। चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा जो प्रश्न है वो माननीय प्रेमा जी से पूछना चाहेंगे। प्रेमा जी, हमारा जो पहला सवाल है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। 2030 तक शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में सार्वभौमिकता लाना। और दूसरा जो है स्कूल से दूर रहने वाले लगभग 2 करोड़ बच्चों को इस मुख्य धारा में लेकर आना। और तीसरा है 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन करना। बहुत खूब प्रेमा जी, लगता है हमारी जो शिक्षा नीति है उसने सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए और एक जो है बेहतर एक शिक्षा नीति जो है हमारी तैयार हुई है। तो अब जो मैं अपने अगले जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ती हूँ। और मैं अपना जो अगला सवाल है वो जो हमारी श्रीमती स्वप्ना जी हैं उनसे पूछना चाहेंगे। स्वप्ना जी, कल हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं और अन्य जो मुख्य लोगों ने देश के राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो हमारा शिक्षक दिवस है, उस पर देश के समस्त शिक्षकों के नाम जो संदेश भेजा है, उसमें माननीय राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें कही हैं। उन्हीं के शब्दों में मैं यहाँ बोल रही हूँ। हमें अपनी शिक्षा नीति कुछ ऐसे नवीन तौर तरीकों का समावेश करने की आवश्यकता है। हमें अपनी शिक्षा नीति में कुछ ऐसे नवीन तौर तरीकों को समावेश करने की आवश्यकता है जिससे युवा पीढ़ी को ज्ञानार्जन के साथ अन्वेषण और अनुप्रयोग के अवसर मिले। तो स्वप्ना जी, क्या हमारी नई शिक्षा नीति में ये खूबियां हैं? वर्तमान शिक्षा प्रणाली रोड मेमोराइजेशन पे काफ़ी निर्भर है और इसके कारण बच्चे कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विद्या को पूरी तरह समझने में असमर्थ रह जाते हैं। पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसका समाधान किया 6th क्लास से इंटर्नशिप के माध्यम से लाता है और गणित एवं को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया है। बहुत खूब स्वप्ना जी, हम मान सकते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का जो उनका सोचने का जो तरीका है, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो उस पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। तो हम
हमारे पास कुछ और भी सवाल हैं, तो हमारा जो तीसरा और अगला सवाल है उसके लिए हम लिसी मैडम से पूछेंगे। माननीय जो हमारी लिसी मैडम जी हैं वो हमें इस प्रश्न का उत्तर देंगी। अध्यापिका जी, क्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रोजगार व भविष्य की आवश्यकताओं पर केंद्रित है? जी बिल्कुल। जो नई शिक्षा नीति है वो रोजगार और हमारे देश के भविष्य की आवश्यकताओं पर निर्भर है, उस पर केंद्रित है। पहली बात तो ये है कि नई शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा पर इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है। दूसरी बात है, छठी कक्षा से लेकर बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देना, उस पर बल दिया गया है। और तीसरी बात तो ये है कि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट, उस पर जोर दिया गया है। बहुत खूब लिसी मैडम जी। जो हमारी आज की सबसे बड़ी हमारे देश की जो मुख्य समस्या है उसमें से बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी एक बहुत ही बड़ी समस्या कह सकते हैं हम लोग। तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने इस पर कार्य किया है और इस समस्या का हल खोजने की कोशिश की है। एक एक बच्चे का जो कौशल है, बच्चे में छुपी जो प्रतिभा है, उसको बाहर निकालने के लिए ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कारगर साबित होगी और निश्चित ही जो जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं उसका हमें समाधान मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो संदीप जी, आप हमें बताइए कि क्या नवीन शिक्षा नीति हमें हमारी जड़ों से जोड़ने में सक्षम है? हाँ मैम, मैं इस बात से सहमत हूँ। नई शिक्षा नीति जो है वो हमें हमारी जड़ों से जोड़ने में सक्षम है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय और मातृभाषाओं पर जोर दिया गया है और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जिससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। बहुत खूब संदीप जी, क्योंकि वृक्ष चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर उसकी जड़ें कमजोर हो तो वो जो वृक्ष है वो बहुत दिनों तक ठहर नहीं सकता। उसी प्रकार अगर शिक्षा नीति में राष्ट्रीय बच्चों को और जो जड़ों से जुड़े रहने पर अगर बल दिया गया है, जैसे कि मातृभाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं पर बल दिया गया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारे लिए एक प्रशंसा का विषय है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए अब हमारे जो अंतिम जो हमारा संशय है, अंतिम जो हमारा प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं और हमारे अंतिम प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अध्यापिका श्री जैस्मिन जी। जैस्मिन जी, आपसे प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो ये वर्ष है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो ये परिवर्तन जो लाया जा रहा है, क्या उसी से संदर्भित मेरा प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वर्ष 2020 में किया जा रहा यह बदलाव क्या अपरिहार्य है, क्या आवश्यक है? ये बदलाव बिल्कुल आवश्यक है। समय के अनुसार हमें बदलाव लाना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप जानते हैं, बदलाव प्रकृति का नियम होता है। अगर हम समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित न करें तो कभी भी हमें उन्नति प्राप्त नहीं होगी। सुशिक्षित नागरिक ही एक देश के तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। तो शिक्षा के रीति में बदलाव समय के अनुसार लाना एक देश की तरक्की के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इस शिक्षा नीति में जैसे अपने समय के अनुसार जो बदलाव लाने की सोच है वो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपने देखा, इस महामारी के अवसर पर हम सब लोगों ने, जो अभिभावक हो या छात्र हो, जो भी हो, शिक्षा से जुड़े जो सारे लोग, अपने सदियों से चली आ रही सारे रीतियों को छोड़कर नए तरीके अपनाए ताकि हम समय के अनुसार शिक्षा में नई चीज़ें ला सकें, नई तरीके अपना सकें और अपने इस समय के मांग के अनुसार उस शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखने के लिए पूरी तरह अपनी तरफ से कोशिश कर सकें। तो इस शिक्षा नीति बेहद आवश्यक ही है इस ज़माने में, यही मेरा मत है। बहुत खूब जैस्मिन जी, आपने जो हमें अपने उत्तर से, अपनी बातों से आप सबने हमें बहुत ज़्यादा संतुष्ट किया है और मैं भी आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जैस्मिन जी। तो हम इस चर्चा में उपस्थित जो हमारे अध्यापक गण थे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जो हमारे मन में संशय थे, जो हमारे मन में बातें थी, जो हमारे मन में कुछ जो अंतर्द्वंद जो हमारे मन में चल रहा था, उसका आप सबने धन्यवाद किया।
तो मैं सभी अभिभावकों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से और विद्यालय परिवार की तरफ से हमारे जो आज के जो चर्चा में जो सहभागी रहे इन शिक्षकों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आज चूँकि शिक्षक दिवस है और हम जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि इसमें निश्चित ही एक हमारे देश को एक नई ऊंचाई मिलेगी, शिक्षा का स्तर सुधरेगा और हमारे जो शिक्षकों के लिए ये एक उचित माध्यम साबित होगा। A very warm greeting to one and all. Word for the day is epistemology. Epistemology is the theory of knowledge, especially with regard to its methods, validity and scope, and distinction between justified belief and opinion. This word is from Greek origin, which means epistem meaning knowledge and logos meaning reason. Sentences. I have narrowed down my study of philosophy to epistemology. मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू तो नहीं मेरा कोई नहीं है, सागर किनारे। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तुमने उनको कर दिए पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा, वादा है वादा। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो, शायद इस जन्म मुलाकात ले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के
हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा।